Good morning, students. How are you all? I am Ashutosh Joshi, your commerce teacher, and I will be teaching you commerce. So, before moving forward to this session, let me tell you something about commerce. As you are moving from class 10th to class 11th, and when you reaches class 11th, three routes are there. What are the routes? One is the science stream, other is the commerce stream, and the third one is the art stream. The major stream which many of the schools does have are the science and the commerce stream. All the streams will be making you reach the destination which you want to reach. But it depends upon you which stream you chooses, because it might be that a selection of a certain stream may make you reach the destination early as compared to the other. So, because commerce is entirely new to you, let me tell you something about commerce. Under the commerce stream, you will be studying three major subjects. And what are the three major subjects which you will be studying under commerce? The first major subject which you will be studying under commerce is accountancy. हिंदी में हम इसको कहते हैं लेखा शास्त्र. Second major subject which you will be studying under commerce is economics, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र. The third major subject which you will be studying under commerce is business studies, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यवसायिक अध्ययन. So, first of all, you must be knowing something about these subjects. Under accountancy, you learn how to make or prepare the accounts of different organizations. What are the different types of accounts? What are the different terminologies which are used in accountancy? What are the basic accounting principles? So these are the guideline principles which you learn, the basics of accounting. Second is economics. Under the economics, you will be studying how the economy moves. Various economic terms you will be studying, reading, and learning. And the third is business studies. Under business studies, you will be learning about the various forms of business which in everyday life you see, but you don't have the idea about the form of business which you are seeing. So, it depends upon you which stream you chooses. Now, let me clear some misconceptions of the students which they do have. Majority of the parents and the students think that commerce is taken by weaker students. But as I have already told to you, this is a misconception. मतलब ये एक भ्रम है कि कॉमर्स जो विद्यार्थी कमजोर होते हैं उनके द्वारा लिया जाता है. ऐसा नहीं है. आज के दिन पे अगर आप देखेंगे, जितने भी बड़े से बड़े लोग जो कार्यरत हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, वो सब के सब कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स पृष्ठभूमि के हैं. हाँ, ये निर्भर करता है कि आपको वो विषय कितने अच्छे से आता है. अगर वो विषय आपको अच्छे से आता है, आपकी दक्षता है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं. लोगों को कम जानकारी होने की वजह से वो इसको एक अच्छा विषय या रोजगारात्मक विषय नहीं मानते. एम्प्लॉयबिलिटी
is more in commerce. So let me tell you the importance of commerce. You will find a accounts department in all the types of organization. अब हर प्रकार की संस्था में एक डिपार्टमेंट को पाओगे, और वो होता है कौन सा डिपार्टमेंट? अकाउंट्स का डिपार्टमेंट, जहां पे पैसा जमा किया जाता है, जो सैलरी बनाता है लोगों की, जो सैलरी का ब्यौरा रखता है, लेखा जोखा रखता है सारे खर्चों का, उसको हम कहते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और वहां पे कौन से एक्सपर्ट लिए जाते हैं? फाइनेंशियल एक्सपर्ट। और वो कहां से आते हैं? कॉमर्स फील्ड से। हर किसी संस्था को चलाने के लिए प्रबंधकों की जरूरत होती है, मैनेजर्स की, who have the idea of management, and mostly these people belong to the commerce field. हाँ, अब देखिए कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं, लोग सोचते हैं कि आफ्टर डूइंग 12th वी कैन डू ओनली बीकॉम। सिर्फ उनको इतना पता है कि कॉमर्स वाला विद्यार्थी बीकॉम कर सकता है, एमकॉम कर सकता है, और उसके बाद क्या रोजगार करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बीकॉम भी अलग अलग प्रकार के हैं। बच्चा बीकॉम पास कर सकता है, बीकॉम ऑनर्स कर सकता है। पास में क्या होता है? बीकॉम पास जो है आपका, उसमें आपको फाइनेंस और मैनेजमेंट दोनों विषयों की जानकारी दी जाती है। बीकॉम ऑनर्स में फाइनेंस के विषयों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आज के दिन पे ट्रेंड पे बीकॉम ऑनर्स है। उसके अलावा बच्चा बीबीए कर सकता है, कॉमर्स वाला बीसीए कर सकता है, होटल मैनेजमेंट कर सकता है, रिटेल मैनेजमेंट कर सकता है। वो बच्चा जो एक तरीके से मास कम्युनिकेशन कर सकता है, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो कॉमर्स का विद्यार्थी कर सकता है और उसको रोजगार भी अच्छे मिल सकते हैं। उसके बाद अगर प्रोफेशनल कोर्स करना चाहे तो सीए का नाम आपने सबने सुना होगा, जिसे हम कहते हैं चार्टेड अकाउंटेंट। हर कंपनी के लिए एक चार्टेड अकाउंटेंट रखना अनिवार्य होता है। सीए का कोर्स कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर सकता है, वैसे ये कंपनी सेक्रेटरी रखना भी अनिवार्य होता है। उसके अलावा ICWA कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट बन सकता है, जो कॉस्ट का, कीमतों का, इनका लेखा जोखा रखता है किसी भी कंपनी की। उसके अलावा चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकता है। पहले ये 12वीं के बाद किया जा सकता था, लेकिन अब इसे ग्रेजुएशन के बाद किया जा सकता है। तो इसलिए स्कोप क्या है? बहुत ज्यादा है। उसके अलावा सिर्फ ग्रेजुएशन करने के बाद भी अगर विद्यार्थी को फाइनेंस की, मैनेजमेंट की अच्छी नॉलेज है, तो उसके जो यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा है। He have a ample of opportunities to work। आप देख रहे हैं कई मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, कई आपके सुपर मार्केट्स आ रहे हैं। द पर्सन्स हु आर वर्किंग ओवर देयर, वेदर इट बी इजी डे, बिग बाजार, तनिष्क शोरूम, एनी मल्टीनेशनल कंपनी शोरूम, over there the persons who are working and managing the things, mostly those persons belong to the commerce background। तो अगर आपको जानकारी अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, तो ये विषय आपको, ये स्ट्रीम आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। हाँ, दूसरी चीज, जब आप 11th में प्रवेश करेंगे, when you will enter into class 11, initially you might find some problem or difficulties. It may be relating to the subject. And why is it so? Because you know science from the past only. Subjects which you will be learning over here is physics, chemistry, biology, which you already have learnt in class 10, but over here you will be learning them elaborately। तो इसलिए बच्चे को क्या है, कई चीजें पहले से आती हैं, उसको लगता है ये आसान है। और जो कॉमर्स में एंटर करता है वो तो बिल्कुल नया है, उसको समझ में नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे वो यहाँ पे समझने लगेगा कॉमर्स में,
उसको क्या लगेगी, ये आसान लगने लगेगी और फिर वो आराम से चीजों को कर सकता है। और आपके सामने एक स्टैटिस्टिक्स भी मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये सर्वे मेरा नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और बाकी कई रेप्यूटेटेड जो एक तरीके से हमारे पब्लिकेशंस है, मैगजीन्स है, उनका स्टैटिस्टिक्स है कि द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द कॉमर्स स्टूडेंट इज मोर एज कंपेयर टू द साइंस स्टूडेंट। मतलब जब एक अध्ययन किया गया तो उसमें ये पाया गया कि जितने जो बच्चे ग्रेजुएट होके निकले साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के, उसमें जो रोजगार पाने वालों में जो प्रतिशत था वो कॉमर्स की स्ट्रीम वालों का ज्यादा था। दूसरा एक और स्टैटिस्टिक्स है जो ये दिखलाता है कि 12वीं तक तो बच्चे की साइंस थी, लेकिन जब वो कॉलेज में आया तो उसने अपनी क्या हो गया, स्ट्रीम बदल दी, उसने बीकॉम, आर्ट्स ये स्ट्रीम्स ली। तो हुआ क्या कि उसकी बेसिक्स का ज्ञान पहले से ही नहीं था, तो उसको वहां पे डिफिकल्टी हुई, जिसके वजह से जो कॉम्पिटेटिव परीक्षाएं हैं जो कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड है वहां पे उसकी एम्प्लॉयबिलिटी थोड़ी कम हो गई। और बहुत अच्छा एक और ऑप्शन जो कॉमर्स वाले के लिए होता है, दैट इज बैंकिंग सेक्टर। सो इट इज माई एडवाइस टू यू ऑल, डोंट बी अफ्रेड ऑफ कॉमर्स। If you love commerce, if you love creativity and you love to learn, and if you are focusing on achieving your objectives, opt for a stream by your choice, by your will and not by the pressure of anyone। और यही मैं अपने जो हमारे अभिभावक है उनसे भी अनुरोध करता हूं कि अपना जो भी निर्णय है वो बच्चों पर थोपिएगा मत। बच्चा जो चीज लेना चाहता है, जो उसको अच्छा लगता है, उसको वो चीज आप लेने दीजिए। क्यों? क्योंकि वो तभी एक सफल व्यक्ति बन पाएगा। अगर आप लोगों को इस विषय के बारे में, पेरेंट्स को भी कोई चीज अगर समझ में नहीं आई है, उन्हें किसी चीज को क्लियर करना है, तो वो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने स्कूल की तरफ से हमेशा तत्पर रहूंगा। आशा करता हूं कि ये जो मैंने आप लोगों के लिए जानकारी आपको यहाँ पे दी है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और जो भी बच्चे कॉमर्स लेना चाहते हैं तो वो क्या है, जल्दी से जल्दी ये डिसाइड करे कि उन्हें कौन सी स्ट्रीम लेनी है। क्यों? क्योंकि शुभस्ति शीघ्रम, जितनी जल्दी करोगे काम उतनी जल्दी होगा काम। आगे समझ में? ठीक है, तो that is all for the day. Thank you so much students. Thank you. Bye bye. Tata.